حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنا بھی ارکان حج یعنی حج کے ضروری حصوں میں سے ایک اہم عمل ہے۔ اس عمل کو رمی یا رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، حج کے اس عمل کو انجام دینا تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس عمل کی اہمیت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یعنی یہ کنکریاں شیطان کو کیوں ماری جاتی ہے۔ تو دوستوں، ہم بات کر رہے تھے رمی کی۔ یاد رکھیے کہ رمی جمرات حج کے مشہور اور اہم کاموں میں سے ہے۔ رمی کے لغوی معنی ہیں پھینکنا، ڈالنا، الزام لگانا یا بات اڑانا۔ قرآن میں بھی یہ لفظ ان تمام معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں رمی جمرات کا مطلب ہوتا ہے ایک مخصوص یعنی طے وقت پر، طے جگہ پر، طے گنتی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکنا۔ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ہر دن 3 جمرات یعنی جمرائے اولا، جمرائے وسطیٰ اور جمرائے عقبہ پر 7 کنکریاں پھینکنی ہوتی ہیں۔ اگر کنکریاں سیدھا جمرہ پر نہ لگے لیکن اس کے قریب 1 سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر گر جائیں تو بھی رمی ہو جاتی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کنکریاں واقعی شیطان کو ماری جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک یادگار عبادت ہے جو شیطان اور برائی کے خلاف علاماتی اظہار کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے جا رہے تھے۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے روانہ ہوئے تو شیطان 3 بار ان کے سامنے آیا۔ پہلا جمرائے عقبہ کے پاس، آپ نے اس پر 7 کنکریاں پھینکی اور وہ بھاگ گیا۔ دوسری بار پھر دوسرے جمرہ یعنی وسطیٰ کے پاس آیا، آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری۔ تیسری بار پہلے جمرہ یعنی ولا کے پاس آیا، آپ نے پھر سے 7 کنکریاں ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آج جو حاجی یہ عمل کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور پیروی میں کرتے ہیں۔ رمی اسلامی امت کی طرف سے شیطان اور تمام باطل طاقتوں کے خلاف اجتماعی یعنی ساموہک نفرت کا اظہار ہے جو ہر سال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حاجی جب جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو وہ کنکریاں حقیقت میں شیطان کو نہیں لگتی، بلکہ یہ ایک علامتی یعنی پرتیکاتمک عمل ہے۔ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں، اور جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو شیطان نے انہیں بہکانے کی بار بار کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار اسے کنکر مار کر بھگا دیا۔ اس واقعے کی یاد میں ہم مسلمان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بھی شیطان کے خلاف اجتماعی یعنی ساموہک نفرت کا اظہار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جمرات دراصل شیطانی طاقتوں کی نشانی ہے، وہاں کوئی اصلی شیطان موجود نہیں ہوتا۔ رمی شریعت کا حکم ہے اور اکثر علماء کے نزدیک یہ واجب ہے، یعنی حج کے ان کاموں میں شامل ہے جنہیں چھوڑنا صحیح نہیں ہوتا، حالانکہ یہ حج کے ارکان یا فرض میں نہیں آتا۔ اب رمی کی اہمیت سمجھنے کے لیے 2 صحابہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ پہلا میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر بیٹھ کر رمی کی اور فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ دوسرے نمبر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں ٹھہر کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ ایک آدمی نے پوچھا، میں نے غلطی سے حلق یعنی بال کٹوانا پہلے کر لیا، آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے کہا، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب رمی کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ رمی کا طریقہ کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ ان تمام باتوں پر بھی ہم آگے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ بات کہ ہر سال لاکھوں حاجی جو کنکریاں مارتے ہیں وہ آخر جاتی کہاں ہیں؟ تو دوستوں، مینا میں رمی کے لیے ایک خودکار یعنی آٹومیٹک سسٹم کام کرتا ہے۔ جب حاجی جمرات کے تینوں مقام پر کنکریاں مارتے ہیں تو یہ کنکریاں پل کے نیچے بنے 15 میٹر گہرے تہخانے میں گرتی ہے۔ وہاں سے 3 خود چلنے والے کنویئر بیلٹ ان کنکریوں کو جمع کر لیتے ہیں، پھر انہیں چھانٹ کر الگ کیا جاتا ہے۔
पूरा सिस्टम जमरात पुल की अलग अलग मंजिलों पर लगे दरवाजों के जरिए कंट्रोल होता है, जो खुलते और बंद होते हैं ताकि कंकरियां अंदर न जाए। इसके बाद ये कंकरियां ट्रकों के जरिए एक तय जगह पर पहुंचाई जाती है और वहां फालतू समझकर ठिकाने लगा दी जाती है। प्यारे दोस्तों, सरकारी अंदाजे के मुताबिक हर साल करीब 1000 टन कंकरियों को ठिकाने लगाया जाता है। आप इस खुद चलने वाले सिस्टम के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अब हम आपको रमी से जुड़े कुछ जरूरी मसाइल बताने जा रहे हैं, जिनका जानना हर हाजी के लिए बहुत अहम है। रमी का वक्त कब है? शरीयत ने रमी के लिए खास दिन और वक्त तय किया है। रमी 4 दिनों में की जाती है। 10 जिलहिज, इसे यौम नहर यानी कुर्बानी का दिन कहा जाता है। 11, 12 और 13 जिलहिज, इन दिनों को अय्याम तशरीक कहा जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह को याद करो गिनती के इन खास दिनों में। जो शख्स जल्दी चला जाए 2 दिन में, उस पर कुछ गुनाह नहीं, और जो ठहर जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। जो तकवा इख्तियार करे और अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि उसी की तरफ लौटना है। सूरह बकरा में है। 10 जिलहिज की रमी यानी पहले दिन की रमी। इस दिन सिर्फ एक जमरात यानी बड़ा जमरा या जमरातल अकबा की रमी वाजिब है। रमी का वक्त कब शुरू होता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक और हनफी उलमा की राय में सुबह सादिक यानी फजर से पहले का वक्त से ही रमी करना जायज है, लेकिन सबसे बेहतर वक्त सूरज निकलने के बाद से लेकर जवाल से पहले का वक्त तक है। जवाल के बाद से सूरज डूबने तक भी रमी की जा सकती है, इसमें कोई गुनाह नहीं। गुरूब के बाद अगर कोई रमी करता है तो फजर से पहले तक का वक्त अभी भी है, लेकिन बगैर मजबूरी के ऐसा करना मकरूह यानी नापसंद है। हाँ, अगर किसी को भीड़, बीमारी या कमजोरी की वजह से मजबूरी हो तो गैर मसनून वक्त में रमी करने पर कोई गुनाह नहीं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई मजबूरी की वजह से वाजिब वक्त में अमल ना कर सके तो उस पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर कोई बिना मजबूरी के मना किया गया काम करे, जैसे सिला हुआ कपड़ा पहनना, तो उस पर दम यानी कुर्बानी देना लाजिम हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा, जो शख्स बिना किसी मजबूरी के फज्र से पहले रमी कर ले तो उसने गलत किया, लेकिन उस पर कोई जुर्माना नहीं। याद रखें, अक्सर हनफी उलमा की यही राय है और इसी पर अमल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं रमी के वक्त और उसमें मुख्तलिफ इमामों की राय के बारे में। पहले दिन यानी 10 जिलहिज की रमी, उलमा की राय। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि पहले दिन की रमी का वक्त जवाल यानी दोपहर के वक्त तक है। जवाल के बाद अगर कोई रमी करता है तो वो कज़ा मानी जाएगी। उन्होंने ये बात इस वजह से कही कि बाकी 3 दिनों यानी 11, 12, 13 जिलहिज में रमी का वक्त जवाल के बाद शुरू होता है, तो पहले दिन जवाल का वक्त होना चाहिए ताकि वो अमल दिन के पहले हिस्से यानी निस्फे अव्वल में अदा की जाए। अगर कोई 11 जिलहिज की सुबह तक रमी ना कर पाए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ऐसे शख्स पर रमी की कज़ा भी वाजिब है और दम यानी एक जानवर की कुर्बानी भी। मगर साहिबैन यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद के नजदीक कज़ा तो करनी होगी, लेकिन दम वाजिब नहीं होगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की राय भी इसी के करीब है, यानी कज़ा तो होगी लेकिन दम नहीं। इमाम मालिक और इमाम अहमद की राय। मालिकी उलमा का कहना है कि रमी का वक्त 10 तारीख की सुबह सादिक से शुरू हो जाता है। यही राय हनफिया की भी है। इमाम अहमद बिन हम्बल से एक रिवायत में यही राय नकल हुई है, लेकिन उनकी मशहूर राय इसके खिलाफ है। उनके मुताबिक गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने पर रमी का वक्त खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर कोई रमी करे तो उसे कज़ा के साथ दम भी देना होगा। शाफई उलमा की तफसील। उनके नजदीक रमी का वक्त यौमुल नहर की रात से ही शुरू हो जाती है, बशर्ते कि हाजी वुकूफ अराफात कर चुका हो। वक्त की तफसील इस तरह है: अफजल वक्त सूरज निकलने से जवाल तक, वक्त इख्तियार जवाल से सूरज डूबने तक, वक्त जवाज अय्याम तशरीक के आखिर तक। आज के दौर में किस पर अमल करना बेहतर है? आज के दौर में हाजियों की भारी भीड़ को देखते हुए इमाम अबू हनीफा से मनकूल दूसरी राय को ज्यादा बेहतर समझा गया है। इस पर अमल की सूरत ये हो सकती है: सुन्नत और अफजल वक्त में अमल करना फजीलत वाला हो और बाकी वक्त को वक्त जवाज यानी जिसमें करना जायज है माना जाए। जमरात के सुतून यानी खंभे जिन पर कंकरियां मारी जाती है। दोस्तों, अब आखिर में हम आपको उन 3 जमरात यानी सुतूनों के बारे में बताएंगे
जिन पर हाजियों की तरफ से कंकरियां फेंकी जाती है। ये शैतानी ताकतों की याद में है, जहां शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। याद रखिए, हज के दौरान 10, 11 और 12 जिलहिज को हाजी जिन 3 पत्थर के सुतोनों यानी खंभों पर कंकर फेंकते हैं, उन्हें जमरात या जुमार कहा जाता है। ये तीनों मुकाम मीना में मौजूद है और ये शायरा अल्लाह में से है, यानी वो जगह जो अल्लाह की निशानियों में शामिल है। जमरात क्या है? जमार दरअसल जमरा की जमा है। अरबी में जमरा का मतलब होता है छोटा कंकर या संगरेजा। लेकिन हज के दौरान इन कंकरियों को फेंकने की वजह से जिन जगहों पर फेंका जाता है, उन्हीं सुतूनों को भी जमरा कहा जाने लगा। हाजी 10वीं से 13वीं जिलहिज तक इन सुतूनों पर कंकर फेंकते हैं। एक दिलचस्प बात, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि जिन हाजियों की रमी यानी कंकर फेंकना कबूल हो जाती है, उनकी कंकरियां गायब हो जाती है। सिर्फ वो कंकरियां बचती है जो कबूल नहीं होती। वरना सोचिए, अगर सारी कंकरियां वही रह जाती तो हर साल वहां पत्थरों के पहाड़ लग जाते। अब जानते हैं तीनों जमरात के नाम। जमराए उला ये मीना से सबसे करीब है और इसे जमराए दुनिया भी कहा जाता है। इसके पास ही मस्जिद खैफ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं कयाम फरमाया था। जमराए वुस्ता ये बीच वाला सुतून है, इसे जमरातुल वुस्ता कहा जाता है। नंबर 3 में है जमराए अक़बा, ये मक्का के करीब है और जमरातुल उखरा भी कहा जाता है। ये सुतून अक़बा नाम की जगह पर है, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दिनों में बाहर से आए लोगों को तबलीग यानी इस्लाम की बात पहुंचाई थी। अक़बा का मतलब होता है पहाड़ के रास्ते के बीच का मैदान, इसलिए उस जगह को अक़बा कहा जाता है। खुलासा ये है, मीना में 3 सुतून हैं यानी 3 खंभे हैं जिन्हें हाजी कंकर मारते हैं। यही है जमरात। पहला है जमराए उला यानी मस्जिद खैफ के पास, दूसरा है जमराए वुस्ता और तीसरा है जमराए अक़बा यानी मक्का के करीब। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको रमी और जमरात से जुड़ी अहम बातें बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और दोस्तों, पैदाइश के वक्त बच्चे के कान में अजान देने से क्या होता है? जब इस पर जर्मन के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च की तो ऐसा क्या मौजज़ा सामने आया जिसने लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया? आखिर वो क्या चमत्कार था जो जर्मन के इस डॉक्टर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका में देखा, जिसमें बच्चे के पैदा होते ही कान में अजान देने का हुक्म था? बड़ी हैरान करने वाली जानकारी आपको बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस्लाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसकी तालीम इंसानों के लिए मुकम्मल और जामे है। बात चाहे पैदा होने से लेकर मौत तक की हो, ये जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। एक हदीस में हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़े। लेकिन साइंसदानों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे आखिर क्या राज पोशीदा है। बज़ाहिर तौर पर उलमा इकराम ने जो इसके बारे में हिकमतें बयान फरमाई थी वो ये थी कि अजान के कलिमात से शैतान भाग जाता है, जिसकी वजह से बच्चा उसके शर से महफूज रहता है। और इसके अलावा इसमें यह मसला भी बयान किया गया कि बच्चे के दुनिया में आते ही इसे जो दावत मिले वो अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और नमाज की दावत हो। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के माहिरीन ने इस बात पर रिसर्च की कि मुसलमानों के यहाँ बच्चे के पैदा होते ही इसके कान में अजान क्यों दी जाती है। इन साइंसदानों को हदीस में छिपे इस मौजज़े का अंदाजा उस वक्त हुआ जब फ्रांस में एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर दौरे पड़ना शुरू हुए। वो अपनी रिसर्च में मजीद लिखते हैं कि जब उस लड़की को दौरा पड़ता तो वो जर्मन जबान में बाज मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो लड़की रहने वाली फ्रांस की थी लेकिन जर्मन जबान का एक लफ्ज भी नहीं जानती थी। जब दौरे में उसने जर्मन जबान में कुछ दुआएं पढ़ना शुरू की तो सारे डॉक्टरों ने शोर मचा दिया कि इस लड़की पे तो कोई जिन्नात या भूत सवार है। ये लड़की तो जर्मन जबान नहीं जानती, फिर ये जर्मन जबान कैसे बोल रही है? जरूर इस पर कोई जिन्नात सवार है। आखिर साइकोलॉजी के एक माहिरीन डॉक्टर ने इस तमाम मालूमात का जायजा लेते हुए इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। इस तहकीक के दौरान उसे मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2.5 साल की थी तो उस वक्त उसकी माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ कर्मचारी थी। जब वो पादरी जर्मन जबान में कुछ सरमन पढ़ता तो उस वक्त ये लड़की पालने में उसके पास ही लेटी होती। जब उस डॉक्टर को ये बात मालूम हुई तो वो उस जर्मन पादरी की तलाश में निकला, लेकिन उसको मालूम हुआ कि वो जर्मन पादरी तो इस वक्त स्पेन में है। स्पेन पहुंचने पर उस डॉक्टर को मालूम हुआ कि वो पादरी तो रिटायर होकर जर्मन चला गया है। जब उसकी तलाश में वो जर्मनी पहुंचा
تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری تو مر چکا ہے، لیکن اس ویگیانک نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی۔ اس ڈاکٹر نے اس پادری کے گھر والوں سے کہا کہ اگر اس پادری کی کوئی پرانے کاغذات، ریسرچ پیپر ہوں تو مجھے دکھاؤ۔ پادری کے گھر والوں نے تلاش کرنے کے بعد کچھ ڈاکومنٹ اس ڈاکٹر کو لا کر دکھائے۔ اس نے جب یہ ڈاکومنٹس دیکھے تو وہ حیران ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ دعائیں جو بے ہوشی کی حالت میں وہ لڑکی پڑھ رہی تھی وہ وہی ہیں جو اس پادری کی سرمن تھی۔ اس ڈاکٹر نے اس تمام تحقیقات کے بعد جب انسانی دماغ پر ریسرچ کی تو اس نے یہ کرکس نکالا کہ جب بچے کی پیدائش کے دوران جو باتیں اس کے کان میں ڈالی جاتی ہیں وہ باتیں اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ رہتی ہیں، اور جب بھی اس کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جائیں تو اس کا دماغ ان الفاظوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اور قدرتی طور پر اس کی زبان سے وہ الفاظ خود بخود جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کا دماغ اس کو ایسا کرنے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت پڑھو۔ دوستو، یورپ کے ماہرین نے تو آج معلوم کیا کہ انسانی دماغ میں سالوں سال تک پرانی چیزیں محفوظ رہتی ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس قیمتی نقطے کی طرف اپنی امت کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہو، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں آ گیا ہے اور اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھے۔ اور اس طرح کی کئی واقعات ہمیں اسلامی تاریخ میں بھی ملتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندوں نے ماں کے شکم میں ہی